Now guys, we will be working on the Seaborn Data Visualization Library. This is the fourth Python library which we need to understand before we start working on a data science or a machine learning project. So just like Matplotlib, even this Seaborn is a data visualization library, meaning using this Seaborn data visualization library, you can create and generate graphs. Okay, so guys, what is Seaborn? Seaborn is a library that uses Matplotlib underneath to plot graph, meaning behind the scene the Seaborn uses Matplotlib library to plot the graph. Seaborn is a library mostly used for statistical plotting in Python. It is built on top of Matplotlib and provides beautiful default style and color palettes to make statistical plot more attractive. मीनिंग आप लोग मैटप्लॉटलिब को भी यूज़ कर सकते हो, बट सीबॉर्न आप लोग कब यूज़ करेंगे? व्हेन यू वांट टू मेक योर स्टैटिस्टिकल प्लॉट्स मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि जो सीबॉर्न है ना, ये आपको थोड़े से बेटर कलर ऑप्शंस और बेटर स्टाइल्स प्रोवाइड करवाती है एज कंपैरिजन टू द मैटप्लॉटलिब. Now Seaborn helps you to explore and understand your data. Its plotting functions operate on data frame and arrays containing whole data sets and internally perform the necessary semantic mapping and statistical aggregation to produce informative plot. अब गाइज ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू समझाऊंगा कि ये जो सीबॉर्न है ये बहुत पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी आप लोगों के लिए क्या कर सकती है? इट कैन परफॉर्म statistical aggregation to produce informative plots. ठीक है, so let's see how we can use this Seaborn data visualization library. तो guys यहाँ पर मैंने बना ली है एक नई collaboratory and in this collaboratory we are going to use all the 4 data science library. मतलब इस डेमो में guys I need to use numpy as well. हम numpy को भी यूज करेंगे. import numpy as np. गाइज यहाँ पर हम यूज करेंगे pandas का भी. इसी डेमो में हम लोग यूज करेंगे matplotlib को भी. import matplotlib dot python plot as plt and guys we are going to use this Seaborn data science library as well. ठीक है, तो देख सकते हो गाइज कि इस डेमो में ओके and in order to understand the Seaborn we are going to use all the data science library. numpy को भी यूज करेंगे, pandas भी, matplotlib भी करेंगे and we are also going to use this Seaborn. ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं sns version underscore underscore. Okay, and let me run the cell and now guys you can see that here we are using this version. Okay, when you are going to run the cell, first of all 4 Python libraries will be imported. okay, और यहाँ पर हमें पता लग जाएगा SNS का वर्जन भी. ओके, सो गाइस एक्चुअली मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी. Seaborn SEABORN. ठीक है, सो गाइस वी आर गोइंग टू यूज द Seaborn वर्जन 0.12.2. ठीक है, सो प्लीज इंपोर्ट ऑल दीज 4 डेटा साइंस लाइब्रेरी. और अब मैं आपको बताता हूँ कि Seaborn को यूज करने का क्या बेनिफिट है. जितने ग्राफ्स गाइस आप लोगों ने मैटप्लॉटलिब में बनाए हैं वो सारे ग्राफ्स हम Seaborn में भी बना सकते हैं, बट मेथड्स के नेम थोड़े से डिफरेंट है. जैसे लाइन ग्राफ बनाने के लिए मैटप्लॉटलिब में हम लोग यूज़ करेंगे प्लॉट फंक्शन का. ठीक है, Seaborn में आप लोग यूज़ करोगे किसी और फंक्शन का. ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझाता चलूँगा कि कैसे आप इस Seaborn डेटा साइंस लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हो. Okay, first please import all these 4 data science library. ठीक है, and we are using this version guys 0.12.2. ठीक है, अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा. ये जो Seaborn डेटा साइंस लाइब्रेरी है गाइस, ये आपको बहुत सारे बिल्ट इन डेटा सेट प्रोवाइड करती है फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस. ठीक है, लेट अस से आप लोग अभी फर्स्ट टाइम इस Seaborn को सीख रहे हो, राइट?
तो ऑब्वियसली आपको कुछ डेटा सेट चाहिए होंगे या आपको कुछ डेटा चाहिए होगा। तो गाइस ये जो सीबॉर्न है ना, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट प्रोवाइड करती है विच यू कैन यूज फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर ट्यूटोरियल पर्पसेस। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट अस से हियर गाइस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस मेथड गेट डेटा सेट अंडरस्कोर नेम्स, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सीबॉर्न डेटा साइंस लाइब्रेरी है, इट यूजेस डिफरेंट डिफरेंट बिल्ट इन डेटा सेट फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर ट्यूटोरियल पर्पसेस। इसका मतलब ये कि इवन विदाउट यूजिंग पांडास यहाँ पर आप अपने डेटा सेट को लोड करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि सीबॉर्न गाइज आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, सो गाइज व्हेन यू आर गोइंग टू रन दिस सेल, यहाँ पर एक देखो लिस्ट आ जाएगी। अब गाइज ये क्या है? ये सारे आपके डेटा सेट के नेम है। एनाग्राम्स हो गया, ब्रेन नेटवर्क्स हो गया, कार क्रैशेस हो गया, डॉट्स हो गया, फ्लाइट्स हो गया, ओके, ग्लू हो गया, आयरिस हो गया, पेंगुइन, स्टेप्स, टेक्सास, टाइटैनिक, these all are what guys, these are your different different data set। और ये जो डेटा सेट है गाइस, यहाँ पर हम पांडास का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे डेटा सेट्स बिल्ट इन है सीबॉर्न डेटा साइंस लाइब्रेरी में, जिसका आप इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है, और आपको किसी ने बोला कि ठीक है मेरे को सीबॉर्न के थ्रू ओके एक ग्राफ जनरेट करके दिखाओ, ओके, एंड क्विकली यू नीड अ डेटा सेट। तो आपको पांडास या किसी एक्सेल फाइल को या CSV फाइल को लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इनमें से कोई सा भी डेटा सेट यूज़ कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो सीबॉर्न अगेन आई एम रिपीटिंग प्रोवाइड्स अस दीज बिल्ट इन डेटा सेट्स विच वी कैन यूज। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इन डेटा सेट्स को विदाउट यूजिंग पांडास हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब गए सीबॉर्न भी एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, तो इसका मतलब ये कि लाइन ग्राफ, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट आप लोग सीबॉर्न में भी जनरेट कर सकते हो, बट यहाँ पर हमारी जो अप्रोच रहेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो गाइस चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सीबॉर्न में अगर आप लोगों को एक लाइन ग्राफ जनरेट करना होगा, सो हाउ यू कैन डू दिस। सो मैटप्लॉटली में गाइस लाइन ग्राफ जनरेट करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था प्लॉट फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पर आपके फंक्शन का नेम क्या है? लाइन प्लॉट। ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू लोड वन डेटा सेट, और इस डेटा सेट को लोड करने के लिए ना आई एम नॉट गोइंग टू यूज पांडास। सीबॉर्न आप लोगों को एक मेथड प्रोवाइड कराता है जिसका नेम है लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। ठीक है, अब देखो ये है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट, यहाँ से आप कोई सा भी डेटा सेट ले लो। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आइरिस, तो यहाँ से किया कॉपी। ठीक है, इधर गए सिंगल कोट से डबल कोट्स में आप कर लो पेस्ट, और इस डेटा सेट को अब आप किसी भी वेरिएबल में करा लो सेव। ठीक है, एंड सी द मैजिक व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट दिस डेटा सेट, ये देखो ये हो गया आपका डेटा सेट लोड। ठीक है, हियर गाइस यू कैन सी दैट वी आर नॉट यूजिंग पांडास एनीवेयर, वी आर जस्ट यूजिंग सीबॉर्न। अब ये हो गए हमारे डेटा सेट के नेम। चलो अब इन डेटा सेट को अगर आपको यूज करना हो, सो जस्ट सिंपली यूज दिस मेथड sns.load अंडरस्कोर डेटा सेट, और यहाँ पर आप बता दो डेटा सेट का नेम। ओके, सो गाइस प्लीज फोकस, ये जो डेटा सेट है ये अभी हम लोगों ने कहाँ पे सेव करा लिया? इस वेरिएबल में। ओके, प्लीज लोड दिस डेटा सेट। So now guys, the first graph which I will be explaining you is this line plot। ठीक है, लाइन ग्राफ अगर आपको बनाना होगा सीबॉर्न डेटा साइंस लाइब्रेरी में, देन गाइस यू विल बी यूजिंग दिस मेथड लाइन प्लॉट। ठीक है, अब देखो ये सीबॉर्न में ना कितना काम आपका आसान हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया, sns.line_plot, इस बिल्ट इन मेथड को करते हैं यूज। एक्स में आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी है और y में आपको कहाँ इंफॉर्मेशन देनी है, और ये जो x एंड y की इंफॉर्मेशन है ये कहाँ से आएगी, बस ये तीन चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, सबसे पहले आप x में क्या प्लॉट कराना चाहते हैं, y में आप क्या प्लॉट कराना चाहते हो, और जो आप प्लॉट करवाना चाहते हो उसका डेटा सोर्स क्या है, ये तीन इंफॉर्मेशन हमको बतानी पड़ेगी। तो गाइस x में मैं प्लॉट करा लेता हूँ सीपल की लेंथ, ये मेरा कॉलम का नेम है, मैंने यहाँ से किया कॉपी, इधर किया पेस्ट। y में गाइस मैं प्लॉट करा लेता हूँ सीपल की विड्थ,
इसको मैंने किया कॉपी, इसको यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। और ये जो सीपल की लेंथ है और जो सीपल की विड्थ है कहाँ से मिलेगी, तो गाइज आप देख सकते हो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दो डेटा इज व्हाट, डेटा सोर्स है हमारा ये डेटा सेट, और इस डेटा सेट वेरिएबल में क्या है, ये सारा डेटा। So now guys, when we are going to run it, see by just writing one line of code, one graph will be generated for you. देख सकते हो, और थोड़ा सा बेटर ग्राफ बनकर आए इफ यू कंपेयर इट विद दिस मैटप्लॉटलिब। तो गाइस ये हो गया हमारे मैटप्लॉटलिब का ग्राफ, और ये हो गया हमारे सीबॉर्न का ग्राफ। आप करा लो कंपेयर, ये है मैटप्लॉटलिब और ये है आपका सीबॉर्न। आप देख पा रहे हो कि गाइस एक्स लेबल और वाई लेबल ऑटोमेटिकली आ गए। ठीक है, तो ये बेनिफिट, और आप देख सकते हो कुछ कलर्स यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द सीबॉर्न डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। बट अब प्रॉब्लम क्या है, आप सभी को गाइज ये इंफॉर्मेशन आ रही होगी, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास ये जो एक्सेस है ना, एक्स लेवल पे है ये इंफॉर्मेशन, वाई लेवल पे है ये इंफॉर्मेशन, सो इट्स अ जनरल इंफॉर्मेशन। अब मेरे को ये जो जनरल इंफॉर्मेशन है ये नहीं चाहिए। ओके, आई डोंट वांट दिस टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ओवर माय ग्राफ, सो नो वरी गाइस, वेरी इजीली यू कैन रिमूव दिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ग्राफ बनाओ एंड सी द मैजिक ऑफ सीबॉर्न। सो गाइज, अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये जो सीबॉर्न है इट यूजेस मैटप्लॉटलिब अंडरनीथ टू प्लॉट ग्राफ। ओके, एंड द सीबॉर्न विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ मैटप्लॉटलिब। अब सपोज करो कि गाइज आप लोग सीबॉर्न का यूज कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू डिस्प्ले दिस काइंड ऑफ एन इंफॉर्मेशन, सो हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। इसका एक सिंपल सा आंसर ये है कि यू कैन यूज सीबॉर्न विद मैटप्लॉटलिब। ओके, और कैसे, देखो सबसे पहले आप लोग इसी लाइन को कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, जस्ट कॉपी। ओके, और यहाँ पे गाइस अब मैं यूज़ कर लेता हूँ plt.title का। ठीक है, तो टाइटल मैं देता हूँ लेट्स से लाइन ग्राफ। ओके, एंड देन गाइस अगर आपको कुछ इसमें लेबल्स देने हो या अगर आपको यहाँ पर कुछ लेजेंड्स देना हो आप वो भी दे सकते हो। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज plt.show। ठीक है, अब देखना कि यहाँ पर इस सीबॉर्न को मैटप्लॉटलिब के साथ यूज़ करने का क्या फ़ायदा हुआ। लेट मी रन इट। तो गाइस अब आप देखेंगे कि एक तो आपको टाइटल आ गया, ठीक है, और दूसरा ये जो इंफॉर्मेशन आपको लिखी हुई आ रही थी, दिस इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गॉन। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, अब आपको आपका ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, विद द टाइटल एंड दिस एक्सेस इंफॉर्मेशन विल बी हिडन। सो दैट मीन्स येस वी कैन यूज सीबॉर्न विद मैटप्लॉटलिब। ठीक है, अभी पीएलटी टाइटल और पीएलटी शो गाइस मैं कैसे यूज कर पा रहा हूँ, देखो ये ऊपर हम ऑलरेडी इंपोर्ट करा चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम इसको इंपोर्ट ऊपर करा चुके हैं। सो हेंस वी कैन यूज ऑल द मेथड्स ऑफ मैटप्लॉटलिब visualization library. Please try. Now guys, you can customize your Seaborn data visualization library as well. अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पर एक स्टाइल यूज किया था ggplot। इसको हम क्या कर रहे थे, वी आर जस्ट कस्टमाइजिंग अवर मैटप्लॉटलिब। सिमिलरली गाइस, यू कैन कस्टमाइज योर Seaborn as well. ओके, इसे हम कहते हैं कस्टमाइज। Seaborn comes with some customized theme. Okay, and you can use these themes as per your requirement. कैसे इन थीम्स को हम यूज कर सकते हैं, हालांकि कम थीम्स है, उनमें से एक थीम्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सो हियर आई एम शोइंग यू कस्टमाइजिंग Seaborn प्लॉट्स। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर इस मेथड को यूज कर लो, sns.set_style। ज़्यादा स्टाइल्स नहीं है हमारे पास, है डार्क हो गया, डार्क ग्रिड हो गया, वाइट ग्रिड हो गया, दीज आर द स्टाइल्स। डार्क क्या करेगा, ये एक ग्रे बैकग्राउंड आपको प्रोवाइड करवाएगा आपके ग्राफ में। ठीक है, बस इतना लाइन ऑफ कोड लिखो गाइस, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोग ऊपर से कर लो कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर बस क्या डिफरेंस होगा गाइस कि अब यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ बन के आएगा उसके बैकग्राउंड में ये ग्रे कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हो, ये ग्रे कलर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऐड। ट्राई करो।
और किस तरीके से गाइस हम कस्टमाइज कर सकते हैं, चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मेरा ग्राफ होगा प्लॉट, अब हम गाइस यहाँ पर ग्रिड्स को कर देते हैं इनेबल, plt.grid trim। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ पर इसको करूँगा रन, सो हेयर गाइस यू कैन सी दैट योर ग्रिड्स विल बी इनेबल। ठीक है, तो अभी हमारे को ग्रिड्स नज़र नहीं आ रहे थे, बट नाउ यू कैन सी आपके पास अब ग्रिड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से गाइज यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ कलर के, लेट मी रन इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये ग्रिड्स बनकर आ जाएंगी। और क्या क्या पैरामीटर्स हम दे सकते हैं यहाँ पर गाइज, अब आप लोग दे सकते हो लाइन स्टाइल। ठीक है, और लाइन स्टाइल में आप लोग दे दो ये हाइफन हाइफन। ठीक है, अब ये हाइफन हाइफन से एग्जैक्टली में क्या होगा, ठीक है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेट मी रन इट। तो अब आपके पास जो लाइन स्टाइल्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी ये। ठीक है, ग्रिड्स अगर इनेबल करने हो सो राइट दिस लाइन ऑफ कोड। और गाइज यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग कर सकते हो लाइन विड्थ। ओके, और इधर मैं लाइन विड्थ देता हूँ यहाँ पर 1.5। so let me run it। so this is how guys we can customize our Seaborn data visualization library as well। ठीक है, और बताओ क्या कर सकते हो इसमें, आप लोग यहाँ पर इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, plt.xtext। गाइस लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था एस टिक्स किसको रेफर करता है। ठीक है, ये देख लो नंबर्स 4.5, 5.0, 5.5, ओके, इनको रेफर करता है। ठीक है, सिमिलरली आपका जो वाइटिक्स है, ओके, अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँ, वाइटिक्स गाइस आपका रेफर करेगा इसको 4.0, 3.8, 3.6। ठीक है, अब आप गाइस यहाँ पर लिख सकते हो ये फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसको करो कॉपी पेस्ट, रन इट। तो अब देखना गाइस क्या डिफरेंस होगा, ये जो आपके एक्सटेक्स और ये जो वाइटिक्स है ना, देखो थोड़े बोल्डर नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, सो दिस इज हाउ गाइस यू कैन कस्टमाइज योर Seaborn। हालांकि बहुत वाहियात लग रहा है, बट जस्ट टू शो यू कि व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स वी कैन यूज। ठीक है, प्लीज ट्राई। नाउ गाइस व्हाट एल्स वी कैन डू in Seaborn data visualization library you can also change the figure size। ये थोड़ा सा important हो जाता है कभी कभी when you are dealing with a very large amount of data। so guys very easily you can change the figure size। ठीक है, इसको करते हैं पेस्ट, और यहाँ पर ठीक है मैं इधर एक फंक्शन यूज कर लेता हूँ plt.figure। ठीक है, यहाँ पर गाइज आपको पैरामीटर देना पड़ेगा एक फिगर साइज। ठीक है, और इस फिगर साइज में आप लोग इंफॉर्मेशन डाल दो इन अ फॉर्म ऑफ विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे लेट से मैंने डाल दिया 2,4। अब गाइस देखना कि क्या होगा कि व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस सेल, अब यहाँ पर जो आपके पास एक फिगर बन के आएगी ना, उसका साइज रहेगा 2/4। ठीक है, सो वेरी इजिली यू कैन चेंज द फिगर साइज इज वेल। सो जस्ट डू वन थिंग, आप लोग इस कोड को कॉपी कर लेना यूजिंग Seaborn विद मैटप्लॉटलिब वाले को। ठीक है, और जब आप पेस्ट करोगे सबसे पहले टॉप पे आप ये लिख लेना plt.figure fig size 2/4। So now guys I will be explaining you some more graphs which we can generate using Seaborn। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपको कलर्स या अपने ग्राफ्स को मोर अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल बनाना हो तो हम कलर कोड्स का कैसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ फॉर डिफरेंट कलर्स पैलेट्स फॉर जनरेटिंग डिफरेंट ऑफ ग्राफ, हम यहाँ पर एक नई डेटा सेट का यूज करेंगे और इस डेटा सेट का नेम है पोकेमॉन। आप लोगों को चैट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, और उस लिंक में गाइस हमारे पास एक डेटा सेट है जिसका नेम है पोकेमॉन। अब उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इन कार्टून्स कैरेक्टर्स का नेम है, किस तरीके से अटैक करते हैं, क्या इनकी स्पेशलिटी है, ये सारी इंफॉर्मेशन। जैसे इसकी स्पेशलिटी है करंट। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू यूज दिस डेटा सेट जो मैंने आप लोगों के साथ चैट सेक्शन में फॉरवर्ड किया है। ठीक है, तो गाइस अब ये डेटा सेट है, अब यहाँ पर हमको पांडास की मदद लगेगी। ठीक है, तो here I am defining this variable Pokemon with the help of pandas। You can use this read_csv method
क्योंकि ये जो डेटा सेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है गाइस, ये एक CSV फाइल है। ओके, एंड यू कैन प्रिंट दिस पोकेमॉन। ये आप कुछ भी नाम दे दो, आप यहाँ पर अपने डेटा सेट का नाम डेटा सेट ही लिख दो या माई डेटा डू। ओके, यू कैन गिव एनी नेम टू दिस डेटा सेट। मैंने यहाँ पे नाम दिया है पोकेमॉन। अब गाइस देखो इस डेटा सेट में एग्जैक्टली में है क्या, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पोकेमॉन कैरेक्टर्स के नेम है। ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ग्रास, फायर, रॉक, साइकिक, फायर। ओके, क्या इनका टाइप 2 है, टोटल, HP, अटैक, डिफेंस, स्पेशल अटैक, स्पेशल डिफेंस, किस जनरेशन को ये बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 से लेके 6 तक की इंफॉर्मेशन है, एंड देन वेदर दे आर लेजेंडरी, फॉल्स और ट्रू। ठीक है, तो एक ये डेटा सेट है, सैम्पल डेटा सेट। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा सेट आई विल शो यू हाउ वी कैन जनरेट डिफरेंट ग्राफ्स इन सीबॉर्न। तो गाइस याद है हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट बनाया था मैटप्लॉटलिब में। हमने मैटप्लॉटलिब में किस मेथड का यूज़ किया था, आप लोगों ने यूज़ किया था स्कैटर। मेथड का नाम भी क्या है, स्कैटर। मैटप्लॉटलिब में जब हम लोगों ने एक ये स्कैटर ग्राफ बनाया था, हम लोगों ने मेथड का भी क्या नाम यूज़ किया था, स्कैटर। ठीक है, बट सीबॉर्न में इफ़ यू वांट टू जनरेट अ स्कैटर प्लॉट यू नीड टू यूज़ दिस मेथड। ओके, इस मेथड का आपका नेम है IM प्लॉट। ओके, इसे हम एग्जैक्टली में क्या कहते हैं, LM प्लॉट फॉर जनरेटिंग द स्कैटर प्लॉट। ओके, अब ये किस तरीके से बनाएगा, आई जस्ट शो टू यू। सो मैंने यहाँ पे लिया SNS.LM प्लॉट। ठीक है, अब मेरे को X में क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, X में मेरे को डालनी है ये इंफॉर्मेशन अटैक। ठीक है, तो X में मेरे को प्लॉट करनी है ये इंफॉर्मेशन, Y में लेट्स से प्लॉट कर लेते हैं ये डिफेंस। सो गाइस ये अटैक और डिफेंस एग्जैक्टली में क्या है, ये मेरे कॉलम के नेम्स है, तो इनमें स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। ठीक है, ये अटैक देखो A कैपिटल है, तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर A कैपिटल ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ठीक है, ये जो अटैक और डिफेंस की इंफॉर्मेशन है ये मिलेगी कहाँ से, ये मिलेगी इस वेरिएबल में से जिसका हमने नाम दिया था पोके। ठीक है, सो गाइस इन सीबॉर्न इफ यू वांट टू जनरेट अ स्कैटर प्लॉट आप लोग किस मेथड का यूज करेंगे, LM प्लॉट। सो लेट मी रन इट। जैसे आप इसको रन करोगे ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ये स्कैटर ग्राफ हमारे लिए बनकर आ गया। ठीक है, अभी आपको बताया कि इंफॉर्मेशन हटानी हो तो व्हाट वी कैन डू, आप यहाँ पर यूज कर लो plt.title स्कैटर प्लॉट इन सीबॉर्न। ओके गाइस, और यहाँ पर आप यूज कर लो plt.show मेथड का। ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू रन इट, अब आपको ये एक्सेस की इंफॉर्मेशन नजर नहीं आएंगी, यू विल जस्ट गोइंग टू हैव योर ग्राफ विद द टाइटल। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट इन सीबॉर्न एंड यू कैन सी। अब गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर सिर्फ स्कैटर प्लॉट ही बनकर नहीं आ रहे, आपको एक ये लाइन नजर आ रही है। ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है रिग्रेशन लाइन। ठीक है, ये जो आपका सीबॉर्न है ना, ये एग्जैक्टली में क्या करेगा, ये एक रिग्रेशन लाइन ऑटोमेटिकली आपको बनाकर दे देगा। बट लेट से आई डोंट वांट दिस रिग्रेशन लाइन, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इधर आप एक पैरामीटर यूज कर लो, फिट अंडरस्कोर रिग्रेशन। ओके, और यहाँ पर आप डाल दो गाइस फॉल्स। ठीक है, सो इसका मतलब है कि आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ रिग्रेशन लाइन। ठीक है, इस पैरामीटर का मतलब समझ में आया, ये जो लाइन हमें बनकर आ रही है इसे हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगा ये होती क्या है और कैसे बनाई जाती है। बट इन दिस डेमो आई जस्ट वांट माय स्कैटर प्लॉट, आई डोंट वांट दिस रिग्रेशन लाइन। सो लेट मी रन दिस सेल एंड नाउ यू कैन सी गाइस, अब आपको सिर्फ एक स्कैटर प्लॉट नजर आएगा और ये जो रिग्रेशन लाइन आ रही थी अब आपको नजर नहीं आएगी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि सीबॉर्न में ओके आप कलर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो गाइस, इस डेटा सेट में ना हमारे पास एक कॉलम है जनरेशन। मुझे ये पता है कि इस जनरेशन में सिर्फ क्या वैल्यूज़ है, 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़ है। ठीक है, अब सपोज करो गाइज आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और मैंने आपको बोला कि जो जनरेशन 1 है उसको अलग कलर में दिखाओ, जो कैरेक्टर्स जनरेशन 2 को बिलोंग करते हैं उसका कलर अलग दिखाओ, 3 का कलर अलग, 4 का कलर अलग, 5 का कलर अलग, और जो 6th जनरेशन है इनका कलर अलग। ठीक है,
तो गाइज आपको कोई एक्स्ट्रा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर एक पैरामीटर का यूज़ करना है जिसका नेम है आपका ह्यू। ओके, जिसका नेम है आपका ह्यू। अब इस ह्यू में आप अपने कॉलम का नेम डाल दो जिसके बेसिस पे आप कैटेगराइजेशन कर रहे हो। ठीक है, जनरेशन ये है मेरा कॉलम नेम है गाइस, और इस कॉलम नेम में देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, 1 से लेकर 6 तक की इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये कि कुछ कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू जनरेशन 1, there are some characters who belongs to generation 2. In this data set there are some characters which belongs to generation 3 4 5 and 6. तो ये जो ह्यू है ये क्या करेगा गाइस, व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस सेल ऑटोमेटिकली डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करवा देगा। और देखो साथ में ये इंफॉर्मेशन भी आ गई। सो ब्लू डिनोट्स टू जनरेशन 1, ऑरेंज डिनोट्स टू जनरेशन 2, 3 के लिए दे दिया इसने ग्रीन कलर, 4 के लिए रेड कलर, 5 के लिए पर्पल कलर और 6 के लिए लाइट पर्पल कलर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज दीज पैरामीटर्स एंड यू आर गुड टू गो। प्लीज ट्राई। तो गाइस ये एलएम प्लॉट मेथड रहेगा आपका स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए, और ये डिफरेंट पैरामीटर्स है विच यू कैन यूज। ठीक है, अब गाइज आप लोग देख सकते हो कि ये जो सीबोन है ना, ये डिफॉल्ट कलर्स प्रोवाइड करवा रही। मैंने तो कहीं नहीं लिखा कि 1 को ब्लू प्रोवाइड करवाओ, 2 को ऑरेंज दो। लेट अस से सपोज करो गाइज कि अब आपको 1 को डिफरेंट कलर देना है, 3 को डिफरेंट कलर देना है, 5 को डिफरेंट कलर देना है। इज इट पॉसिबल इन सीबोन? यस इट इज। ठीक है, तो चलो इस डेमो को और इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं एक नए ग्राफ के थ्रू। Now guys, I will be explaining you that how you can generate bar chart in Seaborn. ठीक है, मैटप्लॉटलिब में तो बार चार्ट बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड थे, बार एच ओके, और एक मेथड था जिसका नाम था बार। सीबोर्न में गाइस जो ये मेथड है इसका नेम है आपका काउंट प्लॉट। ठीक है, क्या नाम है इसका? काउंट प्लॉट। तो चलो यहाँ पर मैं एक बार पहले तो फिगर की साइज सेट करता हूँ, plt.figure। एक फिगर साइज हम ले लेते हैं 9,6। ठीक है, एंड नाउ गाइस विद द हेल्प ऑफ सीबोर्न बार चार्ट बनाने के लिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्या नेम है, काउंट प्लॉट। ओके, क्या नाम है उस मेथड का? काउंट प्लॉट। इफ यू वांट टू जनरेट अ बार ग्राफ, देख सकते हो दिस काउंट प्लॉट विल शो यू द काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच कैटेगोरिकल बिन यूजिंग बार्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसको। तो x पे क्या पुट करना है, लेट अस से x पे गाइस अब मेरे को प्लॉट करना है ये टाइप 1। ठीक है, मतलब अब इस ग्राफ में मेरे को ये शो करना है कि कितने कैरेक्टर्स हमारे ग्रास से रिलेटेड है, कितने कैरेक्टर्स मेरे फायर से रिलेटेड है, कितने कैरेक्टर्स मेरे रॉक हैं, साइकिक हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो लेट अस से x में मैंने गाइस यहाँ पर प्लॉट करवा दे टाइप 1। अगेन गाइस आई एम रिपीटिंग दिस, टाइप 1 इज व्हाट, दिस इज योर कॉलम नेम। देख सकते हो कि टाइप के बाद स्पेस है और उस स्पेस के बाद 1 है, इसीलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ टाइप स्पेस 1। तो गाइज ये मत समझना है कि यहाँ पर मैं वैल्यू अपने से दे रहा हूँ, नहीं, ये जो टाइप 1 है ये मैं इस कॉलम का नेम यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस टाइप 1 की इंफॉर्मेशन इस बेचारे को कहाँ से मिलेगी? तो गाइज अगर आपको याद हो ये डेटा हमने कहाँ पर स्टोर करा रखा है, पॉकेमॉन में। ठीक है, तो लेट मी जस्ट रन दिस सेल। उससे पहले 2 मेथड और ले लेते हैं, plt.title काउंट प्लॉट। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज कर रहे थे plt.show का। सो लेट मी रन दिस गाइस एंड नाउ यू कैन सी दैट क्विकली दिस सीबोर्न विल गोइंग टू जनरेट अ बार ग्राफ फॉर यू। ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार ग्राफ हमारे लिए बनकर आ गया। ठीक है, तो इतने कैरेक्टर ग्रास को बिलोंग करते हैं, इतने फायर को बिलोंग करते हैं, इतने वाटर को बग नॉर्मल। ठीक है, अब गाइस इस ग्राफ में ना मैं आपको 2 चीजें समझाऊंगा। पहली बात तो ये, इससे अच्छा ये रहेगा कि ग्रास कलर को हम दे दें हरा कलर। ग्रास का कलर क्या होता है? ग्रास कलर इज ग्रीन। सो लेट अस से कैन वी मेक दिस पिंक टू ग्रीन? यस वी कैन। देखो गाइस फायर का कलर क्या होता है, आप यहाँ पर रेड दे दो या आप यहाँ पर येलो दे दो। इस तरीके से वाटर का कलर अगर हम ब्लू दे दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एंड इट मेक सेंस। ठीक है, अभी तो आपका सीबोर्न कलर्स डिसाइड कर रहा है। ठीक है, सीबोर्न
एक डिफॉल्ट कलर पैलेट यूज करता है, इसलिए हमको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। बट लेट अस से ग्रास को मुझे कुछ और कलर देना है, फायर को मुझे और कलर देना है, वाटर को मुझे कुछ और कलर देना है, ठीक है। अब गाइस देखो, कलर लिखने के ना हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कितने कलर नेम्स आप लोगों को याद है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, चलो 50 कलर नेम्स आई गेस कि आप लोगों को याद होंगे, ठीक है। बट सिर्फ 50 कलर्स तो है नहीं, और भी बहुत सारे कलर्स हैं। तो जब बात आती है कलरिंग की ना, या जब बात आती है कि हाउ वी कैन मेक आवर ग्राफ अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल, तो गाइस मैं यूज करता हूँ ये वाली साइट का जिसका नेम है HTML कलर कोड्स, ठीक है। मैं पर्सनली इस साइट को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, HTML कलर कोड्स, जब बात आती है स्टाइलिंग की या कलरिंग की, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो, ये हो गया मेरा रेड कलर, ठीक है। चलो इसको कोई भी बता सकता है कि हाँ ये आपका रेड कलर है, बट क्या आप लोग मुझे इस कलर का नेम बता सकते हो? चलो अगर लड़की होगी बता भी दोगे, लड़कियों में कलर का सेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कलर, ठीक है, देखो मैं हूँ, मैं बॉय हूँ, तो गाइस मेरे लिए ये येलो कलर है, ठीक है। ये भी येलो कलर है, ये भी येलो कलर है, ये भी येलो कलर है, बिकॉज वी ऑल आर बॉयज। बट इफ़ यू आस्क अ गर्ल, दे कैन टेल यू कि हाँ ये कलर एक डिफरेंट है, बिकॉज दे हैव बेटर सेंस इन कलर्स। तो गाइस अब सपोज करो कि मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आई नीड टू यूज दिस कलर, ठीक है, आई नीड टू यूज दिस कलर। अब मेरे लिए तो एक ग्रीन है भाई, मेरे को तो कलर की इतनी नॉलेज नहीं है, बट एग्जैक्टली मैं दिस इज नॉट ग्रीन, अगर चलो ये ग्रीन है तो फिर ये क्या है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन। तो गाइस सबसे बेटर तरीका ये रहता है कि आप लोग इस वेबसाइट का यूज़ करो, htmlcolorcodes.com। आपको कलर के नाम लिखने की नीड ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको चैट सेक्शन में ये फॉरवर्ड कर देता हूँ साइट, ठीक है। अब देखो ये साइट आपकी किस तरीके से मदद करेगी, आप लोगों ने वेब टेक्नोलॉजीज पढ़ी भी होंगी। तो गाइस यहाँ पर है ना, ये हेक्साडेसिमल कोड रिप्रेजेंटेशन दी जाती है हर कोड को। पहली बात तो आप कोई कलर बना लो, ठीक है, सपोज करो आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको ये कलर चाहिए, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये हेक्साडेसिमल कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब आप इस हेक्साडेसिमल कोड को यूज़ कर लो, ठीक है। वेबसाइट हो गई, पाइथन हो गई, डेटा विजुअलाइजेशन होगी, हर जगह हमारे पास हेक्साडेसिमल कलर कोड का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, ओके। तो गाइस अब देखो हम ये साइट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ग्रास को अलग कलर देना है, फायर को अलग कलर देना है, वाटर को अलग कलर देना है, एंड सो ऑन। तो गाइस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देने के लिए ना, देखो मैंने ना आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन एक बार चैट सेक्शन में फॉरवर्ड करी है, ठीक है। ये मेरे वेरिएबल का नेम है पोकेमॉन टाइप कलर्स, और देखो ग्रास के लिए मैं ये हेक्साडेसिमल कोड यूज़ कर रहा हूँ, फायर के लिए मैं ये वाला हेक्साडेसिमल कोड यूज़ कर रहा हूँ। जो टाइप है ना, इसमें ये टाइप पे ये इन्फॉर्मेशन है, कुछ कैरेक्टर्स आपके ग्रास है, कुछ फायर है, वाटर है, बग है, नॉर्मल है। तो देखो हर कैरेक्टर को मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड्स दे रहा हूँ, ठीक है। लेटर ऑन आप लोग ये वैल्यू चेंज कर लेना, अभी फिलहाल आप बस इसको करो कॉपी, ठीक है। यहाँ पर आप कर दो इसको पेस्ट, एक नया सेल ले लेते हैं और यहाँ पर इसको कर लिया मैंने पेस्ट। आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार कर देते हैं रन, ठीक है। अब जिनको गाइस ग्रास का कोई भी कलर चाहिए होगा ना, अब आप आराम से मैनिपुलेट कर लेना, ग्रास का कलर बना लो इस वाली वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। सपोज करो आपको ये ग्रास का कलर चाहिए, सपोज करो और डार्क चाहिए, तो आप कोई सा भी कलर ले लेना, ये आपका कॉपी कर लेना गाइस, और यहाँ पर आके इसको हटा के अपना हेक्साडेसिमल कोड डाल देना। अभी फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस आई एम यूजिंग दिस लिस्ट, ठीक है। अब गाइस ऊपर से इस वाले कोड को करते हैं कॉपी, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ पर पेस्ट, और अब मैं यहाँ पर इसको एक इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आई वांट टू यूज डिफरेंट कलर पैलेट, ठीक है। और जो मेरे को कलर पैलेट अब चाहिए वो मेरे को चाहिए ये वाली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस पैरामीटर पैलेट, ठीक है गाइस। इस लिस्ट का नाम क्या है? इस लिस्ट का नाम है पोकेमॉन टाइप कलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप इसको कर दो मेंशन, एंड नाउ गाइस देन यू आर गोइंग टू रन दिस। इस बार थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग देखना कि अब आपके पास वो वाले कलर्स आ जाएंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। पहला था ये वाला कलर कोड जो हमारा सीबॉर्न डेटा साइंस लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली पिक कर रहा था, बट ये है हमारे कलर कोड। वो ग्रास को मैंने ये दे दिया, फायर को ये दे दिया, वाटर को ये दे दिया, एंड सो ऑन। आप लोग चेंज कर सकते हो। दिस इज जस्ट टू शो यू दैट येस इन अ सीबॉर्न वी कैन
add and we can provide our color codes as well. दूसरी गाइस देखो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये है कि these X text आर ओवरलैपिंग विथ ईच अदर. क्या आप इसको पढ़ पा रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं पढ़ पा रहा. कुछ पढ़ पा रहे हैं हम, ग्रास, फायर, वाटर, बग, नॉर्मल, ठीक है, पॉइजन, और उसके बाद गाइस ये इन्फॉर्मेशन हो रही है ओवरलैप. ठीक है, तो अब इसको भी कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है गाइस. नाउ हियर व्हाट यू कैन डू इज, आप इधर एक मेथड का यूज़ कर लो, ठीक है, और उस मेथड का नेम है आपका plt.xtext. यहाँ पर आप एक पैरामीटर गाइस यूज़ कर लेना रोटेशन, और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है डिग्रीज में. 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब आप इन्फॉर्मेशन डालो. देखो अगर मैं डालूँ पॉजिटिव 45 तो क्या होगा, लेट मी रन इट. ओके, तो गाइस अब आप देख सकते हो कि हाँ अब ये प्रॉपरली रीडेबल है, हमने इसको रोटेट कर दिया. ठीक है, इस तरीके से गाइस अगर मैं यहाँ पे डालूँ नेगेटिव -45 तो इन वैल्यूज़ के साथ आप एक बार प्ले कर लेना या गूगल पे जाके थोड़ा सा पढ़ लेना इस रोटेशन के बारे में, तो अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी. इससे पहले ये चीज़ें ओवरलैप कर रही थी, बट नाउ वी कैन रीड इट प्रॉपरली. सो गाइस यस, इन Seaborn what you can do is you can provide the different color codes and you can make interesting graph. Please try. Now I'll show you one more method of Seaborn, और इसे हम कहते हैं dist plot. Okay, so guys what this dist plot will do, it shows a histogram, okay, with a line on it. ठीक है, ये आपको एक हिस्टोग्राम दिखाएगा बट विद अ लाइन ऑन इट. सो यहाँ पर क्विकली मैं रैंडम वेरिएबल बनाता हूँ numpy. ओके, मेरे को यहाँ पर गाइस इसका यूज़ करना पड़ेगा. फ्रॉम numpy वी नीड टू इम्पोर्ट दिस रैंडम. क्विकली मैं एक डेटा यहाँ पे बना लेता हूँ, numpy डॉट रैंडम डॉट rand. ओके, 100 ऑब्जर्वेशंस बना लेते हैं, बहुत है. ठीक है, एंड नाउ आई विल बी यूजिंग sns डॉट डिस्ट प्लॉट. ठीक है, आई विल प्लॉट दिस x. ओके, एंड देन हियर आई विल बी यूजिंग दिस plt डॉट शो. ठीक है, तो गाइस ये डिस्ट प्लॉट एग्जैक्टली में क्या करेगा, इट विल गोइंग टू जनरेट अ हिस्टोग्राम फॉर यू बट विद अ लाइन ऑन इट. ठीक है, अब यहाँ पर गाइस देखो कि आपके पास एक ये वार्निंग है. ठीक है, ये फ्यूचर वार्निंग है कि देखो जो डिस्ट प्लॉट है इज अ डेप्रिकेटेड फंक्शन एंड विल बी रिमूव्ड इन Seaborn वर्जन 14. अभी हम कौन सा वर्जन यूज करें, अभी हम लोग यूज करें 12. ठीक है, तो ये फ्यूचर वार्निंग है कि इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू रिमूव दिस डिस्ट प्लॉट. ओके, वर्जन 14 से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, बट माई मेन ऑब्जेक्टिव इज टू शो यू दैट दिस Seaborn विल गोइंग टू will provide you this distplot method and this distplot method will generate a histogram with the line over it. अब देखो मेरे को क्यों कोलैबोरेटरी और पाइथन प्रोग्रामिंग पसंद है, क्योंकि ये आपको हिंट भी देंगे कि आप यहाँ पर हिस्ट प्लॉट का यूज करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डिस्ट प्लॉट. ठीक है, और देखो यहाँ पे गाइस आपको एक लिंक भी दिख रहा होगा जब आप इस लिंक पे नए टैब पे जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आपको एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा. अपडेटिंग कोड दैट यूजेस Seaborn डॉट डिस्ट प्लॉट. ठीक है, क्योंकि ये इन फ्यूचर हो जाएगा आपका आपका ऑब्सोलीट. सो व्हाट यू कैन डू इज आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इस हिस्ट प्लॉट को. चलो देख लेते हैं हिस्ट प्लॉट को करने से क्या होगा. लेट मी जस्ट कॉपी. ठीक है, नाउ गाइस आई एम गोइंग टू रिमूव दिस डिस्ट प्लॉट. इसको कर देते हैं रन. ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी. बट अब हिस्ट प्लॉट में क्या प्रॉब्लम है गाइस, इट वोंट शो यू दिस रेड दिस लाइन ओवर योर ग्राफ. ठीक है, तो जब भी आपको कुछ इस तरीके की फ्यूचर वार्निंग्स आती है ना गाइस, सो डोंट पैनिक, जस्ट रीड दोज वार्निंग्स एंड यू आर गुड टू गो. अभी फिलहाल हम लोग वर्जन 12 यूज कर रहे हैं, तो वेरी इजीली वी कैन यूज दिस डिस्ट प्लॉट. ठीक है, अभी मैं आपको मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में बताऊंगा गाइस कि चलो ठीक है, अगर ये मेरे को वार्निंग्स नहीं चाहिए, इज देयर एनी वे यूजिंग विच वी कैन हाइड द वार्निंग्स. यस, वेरी इजीली गाइस आप इन वार्निंग्स को कर सकते हो हाइड. ठीक है, उसके लिए हमको एक मॉड्यूल पढ़ना पड़ता है, इम्पोर्ट
वार्निंग्स एंड वार्निंग्स डॉट फिल्टर फ्यूचर वार्निंग। ये 2 लाइन का कोड जैसे हम आप अपने सेल में डाल दोगे ना, ये वार्निंग्स आपकी हट जाएंगी एंड सिंपली यू विल बी गोइंग टू हैव योर चार्ट। ठीक है, तो आप लोग प्ले करके देख लो इससे। हिस प्लॉट भी यूज़ करें ना, एंड देन आप डिस प्लॉट भी यूज़ करें। डोंट पैनिक विद दीज वार्निंग्स। ठीक है, डिस प्लॉट की जगह गाइस बस आप यहाँ पे लिखना हिस प्लॉट टू हाइड दीज वार्निंग्स। Now guys, I will be explaining you one more method of the Seaborn, which personally I like the most. इसका नेम है आपका relationship plot. ठीक है, so guys, as the name suggests, this method shows the relationship between two variables. Okay, it shows the relationship between two variables. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कितने क्विकली आप लोग एक इंफॉर्मेशन को इस मेथड के थ्रू समझ पाओगे। ध्यान से समझना इस डेमो को। तो गाइज यहाँ पर मैं एक नए डेटा सेट का यूज़ कर रहा हूँ। ये डेटा सेट हमको सीबॉर्न प्रोवाइड करवाता है। सो अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस लोड अंडरस्कोर डेटा सेट। यहाँ पर हम पांडास का यूज़ नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सीबॉर्न भी हमको बहुत सारे डेटा सेट प्रोवाइड करता है। ओके, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस डेटा सेट जिसका नेम है आपका टिप्स। ठीक है, और चलो अब इस डेटा सेट को पहले करा लेते हैं प्रिंट। तो पहले समझते हैं कि इस डेटा सेट में एग्जैक्टली में क्या है। तो गाइज इस डेटा सेट में ना एक रेस्टोरेंट का डेटा है। ठीक है, कि टोटल बिल यूज़र का कितना हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली जो रेस्टोरेंट का ऑनर है ना, इट इज़ सेविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हर एंड हिज वेटर। ठीक है, वेटर्स की इंफॉर्मेशन वो सेव करा रहे कि ये टोटल बिल था, वेटर को कितनी टिप मिली, जिसने टिप दी वो मेल था या फीमेल था, स्मोक करता था हाँ या नहीं, किस दिन उसको टिप मिली, किस टाइम पे उसको टिप मिली, कि ये जो फीमेल है ये डिनर के टाइम पे आई थी या लंच के टाइम पे आई थी। साइज़ का यहाँ पर मतलब है कि कितने नंबर ऑफ पर्सनस आए थे रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर 2 जने आए थे, फीमेल थी, इसने 1.01 की टिप दी, नॉन स्मोकर थी और दिन था संडे का। ठीक है, तो इस तरीके का गाइस डेटा हमारे पास है। ये आया 29.03, इतनी टिप देकर गया, मेल था, नॉन स्मोकर था, सैटरडे का टाइम था, डिनर पे आए थे और 3 जने थे। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ना हमारे पास है इस डेटा सेट में। ठीक है, नाउ गाइस यू आर वर्किंग ऑन डेटा साइंस, राइट। अब मैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर हूँ, मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा कि कौन मेरे वेटर्स को टिप ज़्यादा देता है, मेल या फीमेल। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ। या मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि ठीक है, जो मेरे वेटर्स हैं इनको किस टाइम पर टिप ज़्यादा मिलती है, लंच के टाइम पे ज़्यादा मिलती है या डिनर के टाइम पे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब गाइस ये जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, यू विल बी गोइंग टू राइट कोड फॉर इट। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ कोड तो लिखोगे फाइंड आउट करने के लिए, यार मेल्स ज़्यादा टिप दे रहे हैं या फीमेल ज़्यादा टिप दे रही है, डिनर के टाइम पर टिप ज़्यादा मिल रहा है, लंच के टाइम पे टिप्स ज़्यादा मिल रहे हैं। बट अगर आप लोग को पता है हाउ टू यूज सीबॉर्न एंड मैटप्लॉटलिब, क्विकली गाइज यू कैन इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड द नेम ऑफ दिस फंक्शन इज रिलेशनशिप प्लॉट। कैसे, लेट्स फाइंड आउट। सो गाइज सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना डेटा सेट को लोड करा लिया। ओके, आई होप आप लोगों ने भी करा लिया। विद द हेल्प ऑफ एसएनएस यूज दिस मेथड लोड अंडरस्कोर डेटा सेट, और यहाँ पर आप डेटा सेट का नेम है आपका टिप्स। ठीक है, एंड नाउ गाइस हियर आई एम गोइंग टू ऐड अ न्यू सेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि रिलेशनशिप प्लॉट की मदद से हम कैसे ये पता लगा सकते हैं। सो गाइस विद द हेल्प ऑफ सीबॉर्न आई एम गोइंग टू यूज दिस रिलेशनशिप प्लॉट। ठीक है, अब इस रिलेशनशिप प्लॉट में डेटा कहाँ से आ रहा है, इस वेरिएबल से आ रहा है टिप्स। ठीक है, आपको एक्स पे क्या प्लॉट करना है, लेट्स से एक्स पे मेरे को प्लॉट करना है टोटल अंडरस्कोर बिल। अगेन गाइस यहाँ पर हमें अपने कॉलम के नेम्स देने हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, टोटल अंडरस्कोर बिल। ठीक है, वाई पे हमें क्या प्लॉट करना, चलो वाई पे हम यहाँ पे प्लॉट करवा लेते हैं टाइम। या चलो टिप्स मैंने यहाँ पे प्लॉट करवा ली। ठीक है, एंड नाउ गाइस ये रहेगा आपका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। ठीक है, ये रहेगा आपका एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिसका नेम है कॉलम। इस कॉलम में ना गाइस आपको बताना है वो वाला कॉलम नेम
जिसके बेसिस पे आप लोग इवैल्यूएशन करना चाहते हो कि मेल ने ज़्यादा दी या फीमेल ने ज़्यादा दी, लंच टाइम पे ज़्यादा टिप मिली या डिनर टाइम पे ज़्यादा टिप मिली, ठीक है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं ये वाला भी ह्यू भी, चलो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और इधर भी हम एक इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। तो गैस अब देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि किसने सबसे ज़्यादा टिप दी, मेल या फीमेल पे। तो इसके बेसिस पे, इस कॉलम नेम के बेसिस पे आई वांट टू आइडेंटिफाई। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, और इधर भी इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सेल को करते हैं रन, ठीक है। तो अब आप गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन आ रही है, मेल और फीमेल की, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, इसकी अभी एज सच मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं लगी, लेट मी रन इट, ठीक है। और आप देखते हैं तो गाइस ये देखो क्विकली आप लोगों के पास एक ये डेटा सेट जनरेट होकर आ गया, ठीक है। और देखो मेल की इंफॉर्मेशन आपके सामने और फीमेल की इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो क्या हमने कहीं पे कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखा? बिल्कुल भी नहीं। आपको इस रिलेशनशिप प्लॉट ने इतना मैसेज कन्वे कर दिया कि देखो ऑब्वियसली बात है, नाउ एनीवन कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ गाइस हु इज प्रोवाइडिंग द टिप्स मोर, मेल या फीमेल, ठीक है। अब चलो गाइस आपको ये फाइंड आउट नहीं करना हो, आपको ये फाइंड आउट करना हो कि चलो ठीक है इनमें से कितने लोग स्मोक करते थे या नहीं। तो अब हम यहाँ पर एक और पैरामीटर यूज कर सकते हैं, ह्यू। एक बार मैं देख लेता हूँ कि किस में कॉलम में इंफॉर्मेशन है। हाँ, इस वाले कॉलम में है स्मोकर, डाल देते हैं, रन करते हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा इस तरीके का ग्राफ आपका बनकर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं नए टैब में ओपन करा लेता हूँ। तो गाइस ये देखो कितने लोग इसमें से स्मोक करते थे, ब्लू वाले इनमें से स्मोक करते थे, ऑरेंज वाले इनमें से स्मोक नहीं करते थे। तो अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं यार जो लोग स्मोक करते थे ना वो दिलदार बंदे थे, वो ज़्यादा टिप्स देते थे, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो ये जो सबसे ज़्यादा टिप दे रहा है ये स्मोक करते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा हम एनालाइज नहीं कर सकते कि यार जो सबसे ज़्यादा स्मोक करता है उससे सबसे ज़्यादा टिप देना। आप देख सकते हो कि जो नॉन स्मोकर है दे आर आल्सो गुड इन प्रोवाइडिंग द टिप्स, ठीक है। तो इस तरीके की एनालिसिस गाइस हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। अब आपको इस मेल और फीमेल में इंटरेस्ट नहीं है, लेट अस से यू नीड टू फाइंड आउट कि किस टाइम पर ये मतलब टिप्स ज़्यादा मिले, लंच पे या डिनर पे। अभी देखो लंच और डिनर की इंफॉर्मेशन गाइस इस कॉलम में है, तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया टाइम। अब इसको करते हैं रन। अब आपके पास एक नया ग्राफ बनकर आ जाएगा और इस ग्राफ में आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि लंच टाइम पे ज़्यादा टिप मिलती है डिनर टाइम पे। देखो डिनर टाइम पे आपको आपकी वेटर्स को टिप ज़्यादा मिलती है एज कंपेरिजन टू द लंच टाइम। So guys, this relationship plot will help you to identify the relationship between two variables, ठीक है। और ये अगर सीबॉर्न एक्सेस ग्रिड की इंफॉर्मेशन हटवानी हो तो आप यहाँ पे डाल देना plt.show को। अब बस आपको सिर्फ ग्राफ नज़र आएगा, ये cborn.access grid की इंफॉर्मेशन नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई एंड एग्जीक्यूट। तो गाइस सबसे पहले लोड करवा लेना अपना डेटा सेट, ठीक है, एंड देन यू कैन जनरेट दिस ग्राफ, ओके। एंड हियर इट कंप्लीट्स अवर सी बॉर्न।